वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है स्क्रैच। वी नो दैट स्क्रैच इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हम लोगों ने मोशन ब्लॉक्स के बारे में देखा था। वी सॉ हाउ अ स्प्राइट इज बीइंग मूव्ड, टर्न्ड एंड ऑल दैट, है ना। सो आज और दोनों ब्लॉक्स देखने वाले हैं विच आर कॉल्ड एज चेंज एक्स ब्लॉक एंड चेंज वाई ब्लॉक। ओके, सो ये है सेशन 5। So we are going to make the cat move, the sprite move using these two blocks. ये भी motion blocks के category में ही है, मगर they make the cat move in a different way. Alright? हम लोगों ने move steps भी देखा था, where it moves on the right side and left side. और turn देखा था, it turned using the degrees that we mentioned. Point in direction किए थे. Go to में कैसे किए थे? We wanted it to go to a particular coordinate. So coordinate देते ही what happened? That particular cat went directly to the coordinate, है ना? So आज देखने वाले हैं how are we going to make it move up and down. So इसके लिए we'll use the blocks change x and change y. Alright? So चलो सेशन के अंदर देखते हैं how to use these blocks. Alright? So here we go. हमारे पास scratch का window open है. Alright? And we have the script paint ready and the sprite is there already. So यहाँ पे आप motion blocks में देखे होंगे we already have something called as change x by and change y by. So यही दोनों को हम आज use करने वाले हैं. Alright? So आपको एक small recap of what we saw in the earlier sessions. ये coordinates के बारे में. Okay? Let's see a small recap of that so that हमें refresh होने के बाद हमें पता चलेगा कि x और y का proper directions. So क्या करने वाले हैं? Backdrop में जाएंगे. Backdrop को paint करने वाले हैं. So we are going to have a origin first created. So origin create करने के लिए क्या करना पड़ेगा? A line which is going to divide the stage equally on the vertical and horizontal side. Okay? ये दो lines जो intersect होता है, this particular point is called as the origin. Yes, this particular point is called as the origin. So हमें पता है कि the vertical line is called as, what is the vertical line called as? Y axis. और जो horizontal line है उसे कहते हैं X axis. है या नहीं? Yes. So the horizontal line is called as X axis and the vertical line is called as Y axis. So अभी आज हम जो देखने वाले हैं change X by, जो कुछ हम देखने वाले हैं it is going to add X और subtract X. है ना? Because when you talk about change by, it means you're going to add it or subtract it. Change by का मतलब है जो नंबर आप दे रहे हो, for example, if you're going to give 20 in that column, क्या होगा? You will add 20. अगर मैं वहां पे -20 देने वाली हूं तो it is going to subtract -20 from the current position of the character. जो sprite का current x position है उसमें से 20 add होगा. If -20 is given, 20 subtract होगा. Alright? So change x by मतलब आपका जो sprite है वो either right side जाएगा या फिर left side जाएगा क्योंकि x is on the horizontal line. है या नहीं? So when I'm going to use the block change x by, उसका मतलब है I'm going to make the sprite move on the right or on the left. Yes? ये तो हम move से भी कर सकते हैं, है ना? So when you have move plus 20, it means from the current position वो 20 steps right जाएगा. Move minus 20 मतलब from the current position it goes 20 steps on the left. So ऐसे ही change x also. Change x क्या होगा? Pixelate होगा. हर एक pixel को move होगा. Alright? So when we talk about change y by, y तो कौन सा line है? Y is the vertical line, है ना? So y is the vertical axis here. So अभी vertical axis होने से क्या होगा? When I am going to use the block change y by, क्या करेगा? The character will move either up or down. Yes or no? Yes, the character will move on the top if it is going to be positive numbers. और character नीचे जाएगा जब हम input कौन सा numbers देंगे? नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि y का जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज ओनली नेगेटिव वैल्यूज. x का लेफ्ट साइड पार्ट इज
नेगेटिव वैल्यूज, सो हमें लेफ्ट जाना है तो चेंज x में माइनस देना पड़ेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो चेंज y में नेगेटिव देना पड़ेगा। समझ में आया ना? सो दिस वाज द स्मॉल रिकैप ऑफ द सेशन। सो अब देखेंगे कैसे वो मूव हो रहा है। आपको ये सोचना पड़ेगा, विदाउट थिंकिंग यू कैन नॉट एक्चुअली मेक दिस हैपन, बिकॉज हमें पता होना चाहिए कि x और y कोऑर्डिनेट के बारे में, x और y एक्सेस के बारे में, एंड देन थिंक अबाउट हाउ डू यू वांट द कैट टू मूव। इफ यू वांट द कैट टू मूव ऑन टॉप, मुझे जो करंट पोजीशन है वहां से इफ आई वांट टू गो इट ऑन टॉप, व्हाट शुड बी द वैल्यू गिवन? ऊपर जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू देना है। सो व्हाट ब्लॉक शुड आई यूज फॉर द वर्टिकल लाइन? ऊपर नीचे के लिए y एक्सिस, सो हमें चेंज y का ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो चेंज y में to see a prominent difference we'll use like more than 100 or 200 steps, तभी वो बहुत ज्यादा स्पेस यूज करेगा and you can see it moving. Alright, so अभी when I use change y by 200, अभी डबल क्लिक करो, what happened? It moved on top. Yes or no? It moved on top. So now when I give minus 200 और अभी डबल क्लिक करने से it came down. It came to the same position again. Why? क्योंकि जो वैल्यूज हम इस इनपुट बॉक्स में दे रहे हैं that will be added or subtracted to the current position. जो पोजीशन में कैट ऑलरेडी है, जो कोऑर्डिनेट में कैट ऑलरेडी है, उसमें से यू विल एड इट और सब्ट्रैक्ट इट। और कौन सी कोऑर्डिनेट पे ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा? सिर्फ y कोऑर्डिनेट पे, क्योंकि वी हैव यूज्ड चेंज y बाय, है या नहीं? यस। सो अभी तो मैं -100 दे रही हूं। माइनस का मतलब है वर्टिकल लाइन में नीचे जाएगा और ऊपर जाएगा। माइनस विल ऑलवेज गो डाउन। सो व्हेन आई क्लिक चेंज y बाय -100, देखो इट वेंट डाउन बिकॉज द नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y इज बिलो द x एक्सिस, है या नहीं? वो जो सेंटर वाला लाइन है उसके नीचे है द माइनस वैल्यूज ऑफ y. सो व्हेन आई गिव चेंज y बाय -100, जो करंट पोजीशन है वो कैट का, दैट विल कम फ्रॉम दैट करंट पोजीशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो अभी दे रही हूं 200. इफ आई गिव 200 फ्रॉम द करंट पोजीशन, इट शुड बी हियर समवेयर. सो डबल क्लिक करो. यस, इट्स मूविंग ऑन टॉप. हमने तो मूव ब्लॉक में क्या देखा था? सिर्फ राइट और लेफ्ट मूवमेंट देखा था. वी नेवर हैड अ डायरेक्शन ऑफ अप एंड डाउन. सो मुझे अभी इफ आई नीड द कैरेक्टर टू मूव अप और डाउन, मुझे ये चेंज y ब्लॉक यूज करना पड़ेगा. समझ में आया आपको? यस. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द चेंज x ब्लॉक. ये चेंज x ब्लॉक क्या करने वाला है? जो करंट पोजिशन है वो कैट का, वो करंट कोऑर्डिनेट से x वैल्यू में ऐड और सब्ट्रैक्ट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गोइंग टू ऐड 100 in this, change x by 100 टाइप कर रही हूं तो I'm going to double click on it. देखो it's moving on the right. If I want to move it on the left, move blocks के जैसा ही है. move block में left side में move होने के लिए क्या कर रहे थे? We used minus. So अभी मैं -100 टाइप करके डबल क्लिक करूंगी तो it moves in the reverse direction. So this is how we use change x by and change y by. किसके लिए यूज करते हैं? We use it to move the sprite in the right and left direction and also top and bottom direction. है या नहीं? Because we saw all the 4 directions, right और left भी गया था, ऊपर और नीचे भी गया था. So we have this change x and change y block for all the 4 directions. Okay? So अभी यहाँ पे आपके पास ये देख सकते हो, you also have another 2 blocks which is called as set x and set y block. Set x and set y block. Okay? ये क्या करेगा ये set x and set y? x तो हमें पता है is a part of the coordinate. y भी is a part of a coordinate. So wherever you want the cat to start from, जो पोजीशन से आपको कैट जो मूवमेंट या टर्निंग कुछ भी ऑप्शंस करना चाहते हो, यू कैन ऑल्सो सेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कैट.
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो माउस पॉइंटर से, दिस इज गोइंग टू बी -190 -110. सो x का वैल्यू क्या है? -190 और y का वैल्यू है -110. ओके, सो अभी डबल क्लिक करने से देखो, सो जब कभी आप ये जो है सेट x एंड सेट y कर सकते हो, यू कैन मेंशन वेयर डू यू वांट द स्प्राइट टू बी. जब डिफॉल्ट व्हेन यू ओपन अ न्यू फाइल कहां रहता है स्प्राइट? स्प्राइट स्टेज इन द सेंटर ऑफ द स्टेज, जो 0,0 है ना ओरिजिन, उसमें खड़ा हो जाता है. मगर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिंग अप अ पोजीशन, आप ऐसे सेट x एंड सेट y के हिसाब से यू कैन ऑल्सो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिंग अप ऑफ अ पोजीशन, हम लोग ये जो इनिशियल पोजीशन है वो भी हम सेट कर सकते हैं यूजिंग दिस. समझ में आया आपको? सो ऑल दीज ब्लॉक्स हैव ओनली इंग्लिश एज एन इंस्ट्रक्शन. आपको जो समझ में आ रहा है नाम से वही करने वाला है वो ब्लॉक्स. मूव का मतलब मूव, टर्न का मतलब टर्न, चेंज एक्स का मतलब जो एक्स वैल्यू है उसे बदलने वाले हो, सेट एक्स का मतलब है जो एक्स वैल्यू है उसे सेट करने वाले हो. सो ऑल दिस विल हैव द सेम ऑपरेशंस एज देयर नेम्स. ऑलराइट, सो आप एक एक को एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा हर एक ब्लॉक का क्या यूसेज है. ऑलराइट, इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ वी हैव सीन अबाउट मोशन ब्लॉक्स. और आगे के सेशन में वी विल सी हाउ टू डू एन एक्टिविटी ऑल्सो. ये जो एक्टिविटी है इसमें we will see how the move block is going to work, और इसके हिसाब से we'll see another block which is going to make the cat move continuously. Alright, so chalo, we'll see all these things in the next session, and until that, if you have any doubts, please click on the any doubt button in the app and your doubts will be cleared through the app. Meet you in the next session. Bye bye.